He came near to me and pulled my chain and tore my clothes. He taken and is slowly moving. I want to rescue my dress. That's why I'm not bothered about my chain. दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक महिला सांसद के साथ जो स्नैचिंग की वारदात है उसको अंजाम दिया गया। दरअसल आज सुबह 6:15 साढ़े 6 के बीच में जो तमिलनाडु से सांसद हैं आर सुधा, वो तमिलनाडु हाउस यहीं से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उनके साथ में एक और राज्यसभा की सांसद मौजूद थी और मॉर्निंग वॉक के लिए वो लोग यहीं से बाहर निकले। यहां से कुछ ही दूर पर पोलैंड एम्बेसी है जहां पर वो लोग पहुंचे थे और उसी रोड के गेट नंबर 3 और 4, जो पोलैंड एम्बेसी की गेट नंबर 3 और 4 है, उसके सामने पेडेस्ट्रियन रोड थी, वहां से ये वॉक करते हुए जा रहे थे। उसी वक्त जो एक बाइक सवार है वो अपोजिट साइड से आता है, दूसरे डायरेक्शन से आता है और उसके बाद जो सुधा जा रही होती है पेडेस्ट्रियन रोड पे, जो इस तरीके से रोड बनी होती है सड़क के साइड में, वहां पे जो उनकी चेन है उसको स्नैच करता है, जिसमें उनके गले पे जो चोट है उसके भी जो निशान है वो बता रही है कि वो भी वहां मौजूद है और उनको चोट भी लगी है इससे। और उसके बाद वो दूसरे डायरेक्शन से फरार हो जाता है, यानी कि बाइक से भाग जाता है। उसके बाद उन्होंने गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के इसके बाद की शिकायत की कि इस तरीके से दिल्ली में अपराध और बढ़ता जा रहा है और जो इलाका है चाणक्यपुरी का, जो एम्बेसी से सटा हुआ इलाका है, एम्बेसी कई सारी जो है वहां मौजूद है, इसके अलावा कई सारे भवन मौजूद हैं, पुलिस की हाई सिक्योरिटी जोन है, डिप्लॉयमेंट ज्यादा होती है, लेकिन एक सांसद के साथ इस तरीके से स्नैचिंग हो जाना ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। यहां से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही वो पोलैंड एम्बेसी है जहां पर ये स्नैचिंग की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे हैं, उनसे जांच की जा रही है। इसके अलावा जो पूरा एक रूट है उसको जो है वो मैप किया जा रहा है कि आखिर जो अपराधी हैं वो स्नैच करने के बाद कहां गया होगा, किस तरफ फरार हुआ होगा। बाइक सवार बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति आया था, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और उसके बाद उसने स्नैच किया पहले और उसके बाद वो भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। संजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नाना भारत, दिल्ली। Madam, today morning, myself, another my colleague MP from Rajya Sabha, we went for walking from Tamil Nadu guest house. On the way, that is nearby Czech Republic embassy and Poland embassy gate on 3 and 4. Opposite side, one person came with a scooty. We are very cautiously walking very close to platform, not mid of the road. He came opposite side. So we thought we'll give the space to him to go. Then when we move, he came near to me and pulled my chain and tore my clothes. He taken and is slowly moving. I want to rescue my dress. That's why I'm not bothered about my chain. Then he snatched, he left immediately. Then I shouted, hey, he theft my chain, theft my chain. Everybody was there on the road, but nobody is ready to come and rescue me. That is a shock to me. 2 women are shouting, nobody is rescued. Then after some time, I mean, immediate incident, I am proceeding to return back to Tamil Nadu guest house. I saw the patrol with the 2 police. We both of us go and inform them. The police is not reacting much. He taking just simply our phone number and name. That's it. And he is asking me to come to the police station to give a lodge and complaint. Then I called my colleagues, Congress colleagues, Mr. Manik Thakur, who is the whip of parliament. He sent the police. I given the complaint to the police. Then our leader, national leader, Priyanka Gandhiji, taken me to speaker. We given the complaint there also. And I sent the mail complaint to our Honorable Home Minister. I am waiting for the response. There is no, today morning, still I have a depression and shock. There is no safety for women in this country. I am the women MP. I have some contacts, connectivity. Then I given the complaint and everybody came and supporting me. I am thinking about the common women. There is no safety. Where they, powerless women, where they will go? This is headquarters. Parliament is happening. Parliament is happening. I walked nearby embassy, the highly secured area. And one chief minister, women chief minister ruling the state. Where is the safety? There is a security for them. If he slit my neck, I will die on spot. I lose chain, I lose my life. This is not a matter of I only affected. This is a matter of everyone, all the women. Sir,
सांसद की चेन स्नैचिंग हो जाती है, आप इसको किस तरीके से? गैंगवार, एक दूसरे पे गोलियां चलाना, हत्याएं, एक मैं कह सकता हूं प्रतिदिन का कार्यक्रम बन गया है दिल्ली में कानून व्यवस्था का, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी आज भी सूचना आई है कि हमारी एक सांसद प्रातःकाल में चाणक्यपुरी का इलाका, जो सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है, जहां सारी एम्बेसीज हैं, हाउसेज हैं, वहां उनके साथ चैन स्नैचिंग की घटना की थी। तो लगता है कानून व्यवस्था तो मोदी राज में और भाजपा के राज में रह ही नहीं गया है। इनकी सरकार बिहार में है, वहां रोज कत्ल हो रहे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आज आम आदमी की जिंदगी, संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गया है भाजपा सरकार में। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक महिला सांसद के साथ जो स्नैचिंग की वारदात है उसको अंजाम दिया गया। दरअसल आज सुबह 6:15 साढ़े 6 के बीच में जो तमिलनाडु से सांसद हैं आर सुधा, वो तमिलनाडु हाउस यहीं से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उनके साथ में एक और राज्यसभा की सांसद मौजूद थी और मॉर्निंग वॉक के लिए वो लोग यहीं से बाहर निकले। यहां से कुछ ही दूर पर पोलैंड एम्बेसी है जहां पर वो लोग पहुंचे थे और उसी रोड के गेट नंबर 3 और 4, जो पोलैंड एम्बेसी की गेट नंबर 3 और 4 है, उसके सामने पेडेस्ट्रियन जो रोड थी वहां से ये वॉक करते हुए जा रहे थे। उसी वक्त जो एक बाइक सवार है वो अपोजिट साइड से आता है, दूसरे डायरेक्शन से आता है और उसके बाद जो सुधा जा रही होती है पेडेस्ट्रियन रोड पे, जो इस तरीके से रोड बनी होती है सड़क के साइड में, वहां पे जो उनकी चेन है उसको स्नैच करता है, जिसमें उनके गले पे जो चोट है उसके भी जो निशान है वो बता रही है कि वो भी वहां मौजूद है और उनको चोट भी लगी है इससे। और उसके बाद वो दूसरे डायरेक्शन से फरार हो जाता है, यानी कि बाइक से भाग जाता है। उसके बाद उन्होंने गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के इसके बाद की शिकायत की कि इस तरीके से दिल्ली में अपराध और बढ़ता जा रहा है और जो इलाका है चाणक्यपुरी का, जो एम्बेसी से सटा हुआ इलाका है, एम्बेसी कई सारी जो है वहां मौजूद है, इसके अलावा कई सारे भवन मौजूद हैं, पुलिस की हाई सिक्योरिटी जोन है, डिप्लॉयमेंट ज्यादा होती है, लेकिन एक सांसद के साथ इस तरीके से स्नैचिंग हो जाना ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। यहां से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही वो पोलैंड एम्बेसी है जहां पर ये स्नैचिंग की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जांच की जा रही है। इसके अलावा जो पूरा एक रूट है उसको जो है वो मैप किया जा रहा है कि आखिर जो अपराधी हैं वो स्नैच करने के बाद कहां गया होगा, किस तरफ फरार हुआ होगा। बाइक सवार बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति आया था, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और उसके बाद उसने स्नैच किया पहले और उसके बाद वो भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। संजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नवभारत, दिल्ली।